Hello everyone. In this lecture, we will revise Polity's article 1 to 51. 1 to 51. That is up to the fundamental duties. 51A also is included in this lecture, and I will try my best to have this lecture as short as possible. So if it goes long, I'll short it up. I'll cut the video into parts so that we will revise it easily. So let's start with the part 1. So part 1 basically deals with the structure of the India. India, that is Bharat, is a union of state, is mentioned in the part article 1. Second article tells us about the admission of new states or establishment of new states. Admission, by admission I mean we added Sikkim into India in 1971. We added Goa in India in 1961 under Operation Vijay. Okay, and establishment, by establishment I mean as we changed the boundaries or created a new state, Telangana from Andhra Pradesh into 2014, and we also created or changed J&K into J&K and Ladakh. J&K and Ladakh in 2019, right? So this admission of new state or establishment of new state is mentioned in the article 2 of the Indian Constitution. Now let's move to the article 3 of the Indian Constitution. It says that if you want to alter the state properties, like if you want to alter the area of the state, if you want to alter the name of the state, or we want to alter the boundary of the state, okay, if we want to alter in these three things, then we need the prior recommendation of the president, and this thing is mentioned in the article 3 of the Indian Constitution. Now let's move to the article 4. Article 4 says that whatever we did in article 2 and 3, this does not require any special majority, as some of you might think that it is a major change, so it will require special majority, but it is just requiring simple majority, and it is done with the parliament only, and it does not require any recommendation or consent of the state. Okay, so it was part 1. Now let's move to the part 2 of the Indian Constitution. It deals with the citizenship. So part 2 deals with the citizenship in India, and now let's recall it in a short and summarized way. Okay, so let's start. So it basically says that article 5 says that whoever was born in India in 1947 will be an Indian citizen, and if anyone's one parent was Indian, okay, wait, let me retry. Okay, so part 2 deals with the citizenship of Indians. So part 2 deals with the citizenship. In this part there are 7 articles. These are up to 5, these are from 5 to 11, article 5 to 11. So the part 2 deals with the citizenship. Now so we have completed our part 1. Now we will focus on the part 2. Part 2 deals with the citizenship. Okay, so part 2 is from article 5 to article 11. These are 7 articles. So we will recall them one by one. So let me draw a map of India so we can recall or understand it in a better way.
Please don't laugh at this diagram. It is just a rough diagram to make you understand things. So let's discuss Article 5. Article 5 says that anyone who was born in India during 1947 or after that, or if one of anyone's parent was Indian at the time of 1947, will be considered an Indian citizen. So if either you are born in India or one of your parent is an Indian in during 1947, then you will be considered an Indian citizen. Okay. So Article 5 says that. Now it tells about person who were migrated from Pakistan. So पाकिस्तान से जो भी भारत में आए थे उनके बारे में है आर्टिकल 6। तो पहला तो अपन ने डिस्कस कर लिया जो भी भारत के अंदर थे, इस टेरिटरी के अंदर जो भी पर्सन था उसके लिए जो सिटीजनशिप के नियम है वो है आर्टिकल 5 में। अब कह रहा है कि भाई जो भी पाकिस्तान से अपन भारत में माइग्रेट करा है, जिसने भी पाकिस्तान से इंडिया के अंदर माइग्रेट करा है उसका क्या, तो उसको भी सिटीजनशिप दे दी जाएगी और उसके लिए अपन आर्टिकल 6 को देखेंगे। फिर कहता है कि भाई मान लो कोई आदमी था, उसके ज़्यादा ही चुन मच गई, उसने बोला कि मैं तो पाकिस्तान में जाऊँगा भाई। तो अगर वो पाकिस्तान में गया और मान लो कि उसको वहाँ पे सेटल होने में थोड़ी दिक्कत आ गई और फिर वो वहाँ पे सेटल नहीं हो पाया और वापस भारत में आ गया, तो जब वो वापस भारत में आया तो अब क्या करें, क्योंकि ये तो आज़ादी के टाइम पे भारत में नहीं आया था, अब तो ये तो बाद में आया। तो उसके लिए भी अपन के पास एक आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल 7। सो पहला आर्टिकल था जो भी भारत में था, दूसरा आर्टिकल जो भी पाकिस्तान से भारत में आया, और तीसरा आर्टिकल है जो पाकिस्तान का एक फेरा दे के वापस आया है भारत में, फेरी दे के। ठीक है, तो ये हो गया 5, 6 एंड आर्टिकल 7। तो अभी तक तो अपन ने 5, 6 और 7 आर्टिकल के बारे में जो डिस्कशन था वो कर लिया। अब चलते हैं अपन आर्टिकल 8 के बारे में। आर्टिकल 8 डील्स विद द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब पाकिस्तान और भारत के अलावा जहाँ पे भी अपने आदमी मतलब वगैरह सिटीजन्स वगैरह रहते हैं उनके सिटीजनशिप के रिगार्डिंग जो भी नियम वगैरह हैं वो है आर्टिकल 8 में। तो 5वें में था जो भी भारत में था, 6ठे में क्या हुआ जो पाकिस्तान से भारत में आए, 7th में क्या था जो पाकिस्तान के अंदर गए लेकिन वापस आ गए, उनके रिगार्डिंग जो भी नियम थे वो 7th में थे। 8th में जो भी है वही पाकिस्तान और भारत के बाहर, मतलब जो भी किसी दूसरी कंट्री में रहता है उनकी सिटीजनशिप के जो भी नियम हैं, उनको सिटीजनशिप कैसे देनी है या फिर उनके लिए जो प्रोविजंस है वो क्या क्या हैं सिटीजनशिप के, उनके पास क्या क्या राइट्स रहेंगे, उनके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं ना अपनी, वो आर्टिकल 8 में मैं मेंशन कर रखी है। आर्टिकल 9 सेज दैट नो ड्यूअल सिटीजनशिप इज अलाउड। ओके, ड्यूअल सिटीजनशिप मीन्स लाइक इफ एनीवन हैज़ voluntarily acquired any the citizenship of any other country, then its Indian citizenship will be nullified or will be cancelled. Okay, so 9 basically says no. in हिंदी इसको अपन नो ही बोलेंगे ना, तो नो बोलेंगे तो मीन्स नो 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 बेटा, यू कैन नॉट एक्वायर ड्यूअल सिटीजनशिप। सो 9 नो नो नो। ओके, सो इट विल बी easier to recall or revise और रिमेंबर। अब जब हो गया अपना 5, 6, 7, 8 और 9। 5 में बोला अपन के भाई जो भारत में थे उनकी सिटीजनशिप के नियम क्या होंगे। 6ठा बोला कि पाकिस्तान से जो भी भारत के अंदर आए माइग्रेट होकर। 7th बोलता है कि भाई मान लो कोई भूल से या फिर गलती से पाकिस्तान में चला गया, जहन्नुम में चला गया और वापस जन्नत में आने के लिए उसने ट्राई करा, तो उसके लिए क्या नियम वगैरह होंगे, तो उसके लिए अपने आर्टिकल 7 में डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 8 कहता है कि भाई ओवरसीज सिटीजन्स के लिए क्या नियम वगैरह हैं, उनके लिए उनको सिटीजनशिप कैसे देनी है। आर्टिकल 9 सेज बेटा नो नो बेटा, ड्यूअल सिटीजनशिप यहाँ पे नहीं चलेगी। नाउ कम्स आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 सेज दैट ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लॉज, मतलब अगर पार्लियामेंट ने कोई भी नियम बना दिया, ठीक है, तो उस नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा इन सारे सिटीजन्स को। अगर नहीं करेंगे तो उनका मतलब अपने जो लॉज हैं, कानून हैं, आईपीसी वगैरह हैं, अब तो बीएनएस हो गई, उसके अकॉर्डिंग उनके साथ में जो भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा वो किया जाएगा। ओके, आर्टिकल 11 सेज दैट जो भी सिटीजनशिप के रिगार्डिंग रूल्स हैं
उनको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट ही चेंज कर सकती है। अगर उनके अंदर कोई भी नया नियम लाना है या फिर कुछ भी सिटीजनशिप के रिगार्डिंग चेंज करना है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट करेगी, और दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 11। सो लेट्स फास्टली रिकॉल एवरीथिंग इन अ सिंगल शॉट। 5 सेज दैट जो भी इंडिया के सिटीजन, जो भी इंडिया के अंदर थे, मतलब या तो वो इंडिया के अंदर पैदा हुआ हो या फिर उसका कोई भी एक पेरेंट भारत में या फिर भारत का नागरिक हो, ठीक है। 6 वन सेज दैट अगर कोई भी पाकिस्तान से भारत में आया है तो उसके रिगार्डिंग सिटीजनशिप। 7th कहता है कि भी अगर मान लो कोई गलती से पाकिस्तान में चला गया और वापस आता है, उसके रिगार्डिंग क्या नियम है वो 7th के अंदर है, उसको सिटीजनशिप कैसे देनी है वो 7th के अंदर है। आर्टिकल 8 सेज दैट ओवरसीज सिटीजनशिप कैसे देनी है, ठीक है। आर्टिकल 9 सेज दैट नो 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 no, dual citizenship is not allowed. Article 10 says that all the citizens which are mentioned in Article 5, 6, 7, 8 or 9 are subject to the parliamentary laws. Article 11 says that all the amendments that are going to be related to the citizenship rule or any new law that is related to citizenship will be ब्रोट बाय द पार्लियामेंट, एंड सिटीजनशिप के अंदर जो भी चेंजेस करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर इसमें कुछ नहीं करेगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 शुरुआत के 2 जो आर्टिकल हैं वो तो अपने डेफिनेशन ऑफ स्टेट और एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, मतलब कहाँ अप्लाई होंगे या फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल्स के बारे में है, ठीक है। सो आर्टिकल 12 कहता है भाई डेफिनेशन क्या है स्टेट की, मतलब पार्ट 3 में जहाँ जहाँ स्टेट मेंशन्ड है, जहाँ जहाँ भी स्टेट लिखा हुआ है तो उस स्टेट का मतलब क्या है, तो उस स्टेट का मतलब जो भी है वो आर्टिकल 12 में दे रखा है, ठीक है। आर्टिकल 13 कहता है कि भाई अगर कोई भी नियम है या फिर कानून है जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो उसको नलिफाई कर दिया जाएगा, उसको इनवैलिड करार कर दिया जाएगा। ओके, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 हो गया। फिर आता है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंदर ये 5 आर्टिकल्स हैं। 14 कहता है कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 कहता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे 5 ग्राउंड्स पर, रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 कहता है कि भाई इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगी उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको बराबर रखा जाएगा इन 7 ग्राउंड्स पर, मतलब इन 7 ग्राउंड्स के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 5 तो वही ऊपर वाले, रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। 2 और जोड़ दिया भाई, डिसेंट। डिसेंट मतलब यू नो रेजिडेंस इज रिलेटेड टू वेयर डू यू लिव, परमानेंट एड्रेस वगैरह होता है ना, वो है रेजिडेंस। प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस में थोड़ा डिफरेंस होता है, ध्यान रखना, ठीक है, दे आर डिफरेंट थिंग्स। आर्टिकल 17 मीन्स खतरा। खतरा मीन्स अनटचेबिलिटी। अगर आपको अनटचेबल की तरह बिहेव किया जाएगा तो आपको लगेगा भाई मुझे बहुत खतरा है सोसाइटी से। सो 17 इज खतरा रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 सेज दैट अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स आर नॉट लाइक पद्म भूषण, Bharat Ratna. These are not the titles which are abolished. Titles which were hereditary in manner, which were basically given by the Britishers, like Zamindar Mansabdar, Raj Bahadur. These titles which were given by the Britishers or which were hereditary in nature are abolished under the Article 18. So right to equality is over. Now come to the right to freedom. Right to freedom में there are 5 articles again. Okay, 19 to 22. Article 19 tells about 6 freedom, talks about 6 freedom, that is spam rupees board. It will be easier for you to spam rupees board. Remember this trick so that it will be easier for you to remember the 6 freedoms. Okay, spam means speech. P means peaceful assembly. Okay, A means association or cooperative society. M for movement. Rupees means reside or settle. Okay, BOT means business, occupation and trade.
So it was all about 6 freedoms which are mentioned in the Article 19. Spam rupees bot. Okay, remember this trick so that it will be easier for you to remember these 6 freedoms. So Article 19 is discussed. Article 19 के बाद में आता है Article 20. 20 and 22 are related. ये कन्विक्शन से रिलेटेड है, ये अरेस्ट से रिलेटेड है. आर्टिकल 20 अपन को प्रोटेक्शन देता है कन्विक्शन के रिगार्डिंग. ये इसमें 3 प्रोविजंस है. ठीक है, ठीक है. तो आर्टिकल 20 के अंदर जो एक्सपोस्ट फैक्टर लॉ है वो कहता है कि भाई अगर मान लो मैंने कोई एक्ट करा है, मान लो मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर बीएनएस में कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है कि भाई किसी ने अगर किसी को थप्पड़ मारा तो क्या पनिशमेंट मिलेगी, या फिर थप्पड़ के रिगार्डिंग कोई प्रोविज़न ही नहीं है. मान लो कोई नया क्राइम कर दिया मैंने जो जिसके रिगार्डिंग कोई कानून बना हुआ ही नहीं था, तो उसकी सज़ा मुझे नहीं दी जा सकती. मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी की सज़ा दी जाएगी जो कानून मैंने तोड़ा है. अगर कानून ही एग्जिस्ट नहीं करता कहीं पर तो मुझे सज़ा किस बात की मिलेगी. तो अब मान लो कि किसी को गुस्सा आया मेरी बात पर, ठीक है, मैंने किसी को थप्पड़ मारा और उसके रिगार्डिंग कोई कानून नहीं था, तो मान लो पार्लियामेंट ने कानून पास करा जिसके अंदर बोल दिया कि भाई 2000 के बाद में अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मारा है तो उसको जेल होगी 2 साल की. लेकिन आज तो 2025 चल रहा है, तो 2025 में मारा मैंने थप्पड़ और ये कानून बढ़ा रहे हैं 2000 के बाद का. तो अब 2000 के बाद में मैंने थप्पड़ मारा है, मुझे पनिशमेंट देने के लिए इन्होंने कोई कानून बनाया है. ठीक है, लेकिन ये जो कानून है वो रेट्रोस्पेक्टिव है. रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट में जाकर लागू हो रहा है कानून. तो ऐसा कोई कानून है जिसके रिगार्डिंग अगर किसी आदमी के एक्ट को पनिश किया जाएगा तो ऐसा कोई कानून वैलिड नहीं होगा. मान लो मैंने एक्ट करा है तो 2025 में और कोई कानून अब बनाया है 2025 के अंदर और वो 2000 से लागू हो रहा है तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी. सो एक्स फैक्टर लॉ अपना हो गया. डबल जेओपार्डी नहीं करने देंगे. डबल जेओपार्डी मीन्स डबल पनिशमेंट, मतलब कोई भी ऑफेंस आपने करा है उसके रिगार्डिंग आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी. मान लो आपको 4 साल की जेल होती है आपके किसी एक्ट पर, आपने किसी को थप्पड़ मारा, बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा है, वो अगला कॉमा में चला गया, इसके रिगार्डिंग आपको 4 साल की जेल हो गई. आप 4 साल की जेल काट के वापस आए हो. अब आपको उस आदमी ने वापस देखा तो उसने वापस आपके ऊपर केस करा, लेकिन अब वो चाहता है कि आपको फिर से पनिशमेंट हो. लेकिन अब आपको पनिशमेंट नहीं होगी क्योंकि आपने उस एक्ट के लिए, मतलब उसको थप्पड़ मारने के एक्ट के लिए 4 साल की जेल आपने पूरी कर ली है. तो अब आपको फिर से पनिशमेंट झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब अगर आप वापस उसको थप्पड़ मारते हो और वो वापस कोमा में चल जाता है या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, वो मर जाता है अब इस बार, तो उसके रिगार्डिंग आपका नया केस होगा, नई पनिशमेंट होगी और फिर आपको जितने भी साल जेल में जाना पड़े वो जाना पड़ेगा. ठीक है, उस जो आपने एक्ट पहले करा था जिसकी वजह से उसको कोमा हुई थी वो आपको बार बार पनिशमेंट नहीं दिला सकता. ठीक है, अब आता है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन. नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन मतलब मैं खुद को इनक्रिमिनेट नहीं कर सकता, मैं खुद के खिलाफ कोई भी मतलब सबूत दूं, इसके लिए मुझे कोई कंपेल नहीं कर सकता. ठीक है, फोर्स नहीं कर सकता मेरे को. ठीक है, इसके रिगार्डिंग मेरे पास फ्रीडम है. भाई मैं अपने खिलाफ गवाही क्यों दूंगा, तो ये फ्रीडम मुझे मिलती है आर्टिकल 20 के अंडर. आर्टिकल 21 सेज द राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ. ओके, आर्टिकल 21A, अब राइट टू लाइफ मिली है तो एजुकेशन लो और बढ़िया बढ़ाओ अपनी ज़िंदगी को. ठीक है, फिर आता आर्टिकल 22. आर्टिकल 22 फिर से अरेस्ट के मामले में आ गया कि भाई अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको ग्राउंड बताना पड़ेगा मुझे किस ग्राउंड के लिए अरेस्ट किया जा रहा है. और अगर मान लो मैंने आपको अरेस्ट करा, मतलब किसी ने आपको अरेस्ट करा और वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने अगर पेश नहीं करता तो आपको छोड़ना पड़ेगा उसे. मतलब वो आदमी आपको 24 घंटे से ज़्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकता बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे. और मजिस्ट्रेट अगर उसको परमिशन देता है कि भाई अब रख लो अपने पास में 24 घंटे से ज़्यादा, तभी आप वो आदमी आपको रख सकता है 24 घंटे से ज़्यादा. अदरवाइज़ अगर मजिस्ट्रेट उसे मना कर दे तब तो वो रख ही नहीं सकता, आपको बताइए. ओके, सो ये हो गया 24 घंटे का नियम. और फिर है भाई कि अगर आपको किसी ने अरेस्ट करा है तो आपके पास वकील रखने की पूरी आ जाती है. आप चाहो जो वकील रख सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू कैन पे. ओके, सो आर्टिकल 22 हो गया. आर्टिकल 19 to 22, 19, 20,
21, 21A, 22. 19 6 फ्रीडम स्टैम्प रुपीज बोट. 20 कन्विक्शन के रिगार्डिंग है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के रिगार्डिंग, डबल जेओपार्डी के रिगार्डिंग, और तीसरा था अपना नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन. 21 सेज दैट अबाउट राइट टू लाइफ लिबर्टी. 21A एजुकेशन, APCD. ओके. 22 कन्विक्शन के रिगार्डिंग, भाई आपको कन्विक्शन नहीं सॉरी अरेस्ट के रिगार्डिंग, कि आपको जेल हो मतलब अरेस्ट कर लिया गया है तो उसके लिए जो भी प्रोविजंस हैं, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, 24 आवर्स और वकील, इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 22 में है. नाउ लेट्स मूव टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, RAE. इसमें दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24. आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू आर्टिकल 25, 26, 27, 28 दैट इज रिलीजियस फ्रीडम राइट्स. रिलीजियस फ्रीडम के रिगार्डिंग जो भी राइट है वो क्या है. सो ये आप याद करोगे पति के हिसाब से, PATI. पति मीन्स प्रीच, प्रैक्टिस, प्रोपगेट, और ये प्रोपगेशन जो भी होगा वो टैक्स फ्री होगा. ठीक है. और प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियस religion, your religion. A means you have the freedom to manage your affairs, religious affairs. अपने जो रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए आपके पास राइट्स हैं आर्टिकल 26 के अंडर. आर्टिकल 27 वो है T. भाई आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. तो T इज़ रिलेटेड टू टैक्स, टैक्स नहीं लगेगा आपके रिलीजन के प्रमोशन पर. और 28 tells us about religious instruction. I means instruction. इंस्ट्रक्शन जो भी आपके रिलीजियस के इंस्ट्रक्शन है वो भाई किसी भी आप अटेंड करो तो आपको कोई रोकेगा नहीं. ठीक है. सो पति से याद रख लेना. ठीक है. ये जो भी अपने आर्टिकल हो गए 25 से 28. ठीक है. प्री मीन्स प्रीच, प्रैक्टिस, प्रोपगेट. A मीन्स अफेयर्स, रिलीजियस जो भी अफेयर है उनको मैनेज करने के लिए आपके पास आर्टिकल 26 है. T से रिलेट कर देना टैक्सेशन, और I से रिलेट कर देना इंस्ट्रक्शन. ऐसे याद कर लेना. और उसके बाद में अपना आएगा आर्टिकल 29, 30. 29 एंड 30. 29, 30 ये है अपने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. पहला है अपना कल्चर का राइट और दूसरा है एजुकेशन. आर्टिकल 29 के अंदर क्या है कि अगर कोई भी माइनॉरिटी है या फिर माइनॉरिटी सेक्शन है तो वो अगर अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को बचाना चाहता है या फिर प्रोटेक्ट करवाना चाहता है तो वो आर्टिकल 29 का यूज़ कर सकता है. और इस 29 के अंदर एक और प्रोविज़न है, ये भी याद रखना कि कोई भी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, अगर उसे स्टेट या तो मैनेज करता है या फिर उसको फंड करता है तो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. एडमिशन के लिए कोई मनाही नहीं होगी ऑन द ग्राउंड्स रेस, रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज. ठीक है. इन 4 ग्राउंड पर आपके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या फिर आपको एडमिशन के लिए रोका नहीं जाएगा कि भाई आप भाई इस लैंग्वेज के नहीं है या फिर इस रेस के नहीं है, इस रिलीजन के नहीं है. अगर आप इनमें से नहीं है तो आपको रोका नहीं जा सकता. और ये आएगा आर्टिकल 29 के अंडर. आर्टिकल 30 माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने के लिए जो भी प्रोविजंस हैं वो इसके अंदर मेंशन है. ठीक है. आर्टिकल 30 के अंदर. आर्टिकल 31 राइट ऑफ प्रॉपर्टी था, उसको हटाकर 300A के अंदर डाल दिया. अब ये लीगल राइट बन गया और इसको डालने के लिए अपन ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 का यूज़ करा था. इसके बाद में अपने पास में आता है आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 हैज़ 5 रिट्स और इट इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट. इट इज़ नोन एज द सोल ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. It is considered sole by the B.R. Ambedkar. By B.R. Ambedkar. Okay, so writs 5 हैं. पहली है habeas corpus, दूसरी है अपनी mandamus, तीसरी है prohibition, चौथी है certiorari और 5वीं है quo warranto. ये रिट्स हैं. ठीक है. ये 5 रिट्स हैं, आपको पता होना चाहिए इनके अंदर क्या क्या है, पढ़ लेना आप. ठीक है. और उसके बाद में आर्टिकल 33 आता है, 34 आता है, 35. ये है ना कोई डिस्कस करता नहीं है जनरली वी फोकस ऑन आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32.
ज़्यादा से ज़्यादा 12 को भी अपन 12 13 को भी अपन इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन ये लास्ट के 3 जो आर्टिकल हैं उनको भूलना मत, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब कोई डिस्कस नहीं करता ना तो इनसे क्वेश्चन आने का या फिर डाउट होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो 33 कहता है कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए वैलिड नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस के लिए वैलिड नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, और वायलेट करेगा कौन, पार्लियामेंट करेगी या फिर गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। तो फिर वो आर्म्ड फोर्सेस के आदमी कोर्ट में जाके नहीं कहते कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। इनका फंडामेंटल राइट्स वायलेट करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास में है, और गवर्नमेंट जब चाहे इनका फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर सकती है, ठीक है। तो 33 कहती है भाई आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स नहीं होते। 34 कहती है भाई जहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस हैं और पीस या फिर सिक्योरिटी बनाने के लिए, मतलब जहाँ पे भी मार्शल लॉ लागू कर रखा है, वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज किया जा सकता है या फिर वायलेट किया जा सकता है। और अगर इस वायलेशन, जो भी वायलेशन हुआ उसकी कोई भी मतलब रिगार्डिंग आप कोर्ट में नहीं जा सकते आर्टिकल 32 के रिगार्डिंग, ठीक है। जहाँ पे भी मार्शल लॉ लागू है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। फिर आता है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 कहता है कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग जो भी नियम हैं, कानून हैं या फिर लॉ हैं, वो बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास में है। कोई भी दूसरी एंटिटी लाइक स्टेट लेजिस्लेचर ये ना फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग कोई भी नया नियम या फिर कोई भी पुराने नियम को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ पावर पार्लियामेंट के पास में है। अब आता है अपना डीपीएसपी का पार्ट।